بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تیل کی بندش، بحران، ذخیرہ اندوزی یا کچھ اور، کمپنیوں نے سپلائی 50% تک محدود کر دی۔ قیمتیں بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر پیٹرول کی مصنوعی قلت، پیٹرول کی طلب 45 لاکھ لیٹر، سپلائی صرف 22 لاکھ، ڈیزل کی سپلائی بھی صرف 13 لاکھ لیٹر تک محدود۔ ڈیلرز کی دہائی، شہر میں پیٹرول پمپس نے نوزل بند کرنا شروع کر دی۔ تیل کی بندش، بحران، ذخیرہ اندوزی یا کچھ اور، کمپنیوں نے سپلائی 50% تک محدود کر دی۔ قیمتیں بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر پیٹرول کی مصنوعی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ پیٹرول ڈیلرز لاہور کے صدر چودھری نعمان کے مطابق لاہور شہر میں روزانہ 45 لاکھ لیٹر پیٹرول اور 25 لاکھ لیٹر ڈیزل کی طلب ہے۔ تاہم آج شہر کے پیٹرول پمپس کو صرف 22 لاکھ لیٹر پیٹرول جبکہ 13 لاکھ لیٹر ڈیزل فراہم کیا گیا۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ آئندہ قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر آئل مارکیٹنگ کمپنیاں پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی محدود کر رہی ہیں، جس سے مارکیٹ میں خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب شہریوں نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو غیر ضروری پریشانی اور ممکنہ قلت سے بچایا جا سکے۔ ایل پی جی کی بلیک میں دھڑلے سے فروخت، لاہوری دوہری چکی میں پھنسنے لگے۔ ایل پی جی کی سرکاری قیمت 241 روپے مگر 440 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ حکومت نے عوام کو ایل پی جی مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، شہریوں کی دہائی۔ منافع خوروں کی منمانیاں برقرار، سرکاری نرخ نظر انداز کر دیے گئے۔ ایل پی جی کی سرکاری قیمت 241 روپے کلو مقرر کی گئی۔ مختلف علاقوں میں 370 سے 450 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ سرکاری نرخ کاغذوں تک محدود ہونے پر شہری پھٹ پڑے، شکوہ کیا منافع خور منمانے دام وصول کر رہے ہیں، جس سے گھریلو بجٹ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ دکانداروں نے موقف اختیار کیا، ایل پی جی مہنگے داموں مل رہی ہے، اس لیے سرکاری نرخ پر فروخت نہیں کر سکتے۔ تمام ذمہ داری ریٹیلرز پر ڈالنا درست نہیں۔ حقیقت ہے کہ روزانہ ہم احتجاج کریں، آئے دن احتجاج کریں، ہمارے مسائل حل کیے جائیں۔ ٹاؤن شپ ہوا، گرین ٹاؤن ہوا، عمر چوک، یہ وہ علاقہ جہاں گیس کی انتہائی شارٹیج ہے۔ اب جب نئی گیس لوگ کیا کریں گے فاق بھائی؟ وہ جائیں گے ایل پی جی کی طرف، وہ جائیں گے لکڑی کی طرف۔ ایل پی جی حکومت کے ہم نے بڑا احسان کر دیا، ہم نے قیمت کم کر دی ہے۔ باخدا پورے لاہور میں کہیں بھی سرکاری نرخوں میں ایل پی جی میسر نہیں ہے، کہیں 350 میں ہے، کہیں 400 ہے۔ یہاں کئی ایسے علاقے ہیں جو گلی محلے میں 500 روپے تک مل رہی ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ سرکاری نرخ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ چکن گوشت کی قیمت 5ویں سینچری پار کرے گی، قیمت 512 روپے کلو مقرر۔ عام شہری پریشان، کئی مہینوں بعد پیاز ڈبل سینچری کر گیا، 200 روپے کلو فروخت۔ ایرانی ٹماٹر 190 کے بجائے 400 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ شملہ مرچ 350، مٹر 500 روپے کلو تک بکنے لگا۔ برائلر کی قیمت ایک بار پھر بڑھ گئی، مرغی کے گوشت کی قیمت 5ویں سینچری پار کر گئی۔ برائلر گوشت کی قیمت 512 روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی ہے۔ فارم ریٹ 325، تھوک 339 اور پرچون قیمت 353 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ فارمی انڈے 8 روپے اضافے سے 241 روپے فی درجن ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں پھل اور سبزیاں بھی سرکاری نرخوں میں دستیاب نہیں، کئی مہینوں بعد پیاز ڈبل سینچری کر گیا۔ پیاز 105 کے بجائے 200 روپے فی کلو۔ ایرانی ٹماٹر 190 کے بجائے 400 روپے فی کلو بیکنے لگا۔ دیسی لہسن 140 کے بجائے 310 روپے فی کلو۔ ادرک 365 کے بجائے 480 روپے فی کلو۔ شملہ مرچ 310 کے بجائے 350 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ کیلا 215 کے بجائے 250 روپے فی درجن۔ انورٹول 315 کے بجائے 400 سے 410 روپے۔ چونسا آم 290 کے بجائے 350 روپے۔ دوسہری آم 270 کے بجائے 300 روپے فی کلو گرام میں بیچے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کتے کے کاٹنے سے ریبس کا مریض سامنے آ گیا۔ 68 سالہ ہاشم میو اسپتال میں دم توڑ گیا۔ ریبس کی علامات کے بعد مریض 1 ماہ سے داخل تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق بیماری میں دماغ کی سوزش ہوتی ہے، موت کے 90% خدشات ہوتے ہیں۔ اور یہاں کو بتائیں کہ علاج مہنگا، ماہر ڈاکٹرز نایاب، سرکاری اسپتالوں کی تنزلی کا آغاز۔ سیکنڈ فیلوشپ بند، 44 اہم ترین شعبوں کی ٹریننگ معطل۔ پیڈز، ریڈیولوجی اور سرجری سمیت اہم شعبے لپیٹ دیے گئے۔ واسکولر سرجری، یوروگائنی اور انکولوجی سمیت درجنوں شعبوں کی سیکنڈ فیلوشپ پر تالا لگ گیا۔ علاج مہنگا، ماہر ڈاکٹرز نایاب ہو گئے۔ پنجاب میں ہزاروں ڈاکٹرز کا مستقبل داو پر، سیکنڈ فیلوشپ بند کر دی گئی۔ 44 اہم ترین شعبوں کی ٹریننگ معطل ہو گئی۔ ہر سال تیار ہونے والے 100 سے زائد ماہر ڈاکٹرز کا راستہ روک دیا گیا۔ پیڈز، ریڈیولوجی اور سرجری سمیت اہم شعبے لپیٹ دیے گئے۔ واسکولر سرجری، یوروگائنی اور آنکولوجی سمیت درجنوں شعبوں کی سیکنڈ فیلوشپ پر تالا لگ گیا۔ پنجاب کے
सरकारी टीचिंग अस्पतालों में 1000 डॉक्टर्स इस वक्त भी सेकंड फेलोशिप कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि फेलोशिप की बंदिश से बेशतर शोबों के माहिर डॉक्टर्स की कमी पैदा होने का संगीन खदशा पैदा हो गया है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के 7वें पैकेज की बोलियां टोटल टेक्नोलॉजीज ने कम तरीन बोली देकर मैदान मार लिया। बुनियादी बोली 64 करोड़ 92 लाख रुपए करार। कम तरीन बोली की बुनियाद पर टोटल टेक्नोलॉजीज को ठेका देने की सिफारिशात। मंसूबे के तहत जदीद बोन मैरो ट्रांसप्लांट हॉस्पिस से पेलेक्टिव केयर सेंटर कायम होगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए जदीद बोन मैरो ट्रांसप्लांट हॉस्पिस पेरिएटो केयर सेंटर कायम होगा। मॉड्यूलर बीएमटी रूम्स तंसीब और कमीशनिंग का काम अस्पताल में होगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर अस्पताल के 7वें पैकेज की बोलियां मौसूल हो गयी। आईडेप अथॉरिटी को 3 कंपनियों की जानिब से बोलियां मौसूल हुई। टेंडर में 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया। तीनों को तकनीकी तौर पर अहल करार दिया गया। मेडीलैंड पाकिस्तान, टोटल टेक्नोलॉजीज और यूनिमेक्स ने बोलियां जमा कराई। टोटल टेक्नोलॉजीज ने कम तरीन बोली देकर मैदान मार लिया। टोटल टेक्नोलॉजीज की बुनियादी बोली 64 करोड़ 92 लाख रुपए करार पाई। 5 साल तौसी वारंटी समेत कीमत 65 करोड़ 85 लाख 60 हजार मुकर्रर किए गए। IGAP ने टोटल टेक्नोलॉजीज को कम तरीन बोली दहिंदा करार दे दिया। सरकारी अस्पतालों के लिए मुफ्त अद्वियात का मजीद बजट ट्रांसफर। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 463 मिलियन, म्यू अस्पताल को 365 मिलियन रुपए दिए गए। दूसरी जानिब पंजाब किसान कार्ड फेज 2 का PC1 तैयार। रवां साल 10 अरब रुपए का तखमीना। किसान कार्ड से काश्तकार खाद, बीज, ज़राई अद्वियात और दीगर जरूरी मदाखिल खरीद सकेंगे। सरकारी अस्पतालों के लिए महकमा खजाना ने मुफ्त अद्वियात का मजीद बजट जारी कर दिया। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 463 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। मेयो अस्पताल को 365 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को 256 मिलियन रुपए जारी किए गए। PIC को 495 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। पंजाब किसान कार्ड फेज 2 का PC1 तैयार कर लिया गया। रवा साल 10 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। मंसूबे के लिए जल्द PND बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी। किसान कार्ड फेज 2 के तहत रवा माली साल में 6 अरब 75 करोड़ जारी किए जाएंगे। मंसूबे के लिए बाकी 3 अरब 25 करोड़ रुपए आइंदा माली साल में फराहम किए जाएंगे। किसानों को कार्ड के जरिए जरी जरूरियात के लिए बिला सूद कर्ज की सहूलत दी जाएगी। किसान कार्ड से काश्तकार खाद, बीज, ज़राई अद्वियात और दीगर जरूरी मदाखिल खरीद सकेंगे। किसान कार्ड के पहले मरहले में भी काश्तकारों को माली सहूलत फराहम की जा चुकी है। महकमा ज़राअत के मुताबिक फेज 2 में मजीद छोटे और मुतवस्सित किसानों को प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। मंसूबे से छोटे किसानों की माली मुश्किलात कम, ज़री शोबे में सरमायाकारी बढ़ेगी। लंबी लाइनों, चक्करों और दफ्तरों की दौड़ खत्म। अब गाड़ी रजिस्टर करना आसान होगा। शोरूम से निकलने वाली गाड़ी रजिस्टर होकर मालिक के हवाले की जाएगी। DG एक्साइज ने अफसरान और कार मैन्युफैक्चरर्स को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। पंजाब में खरीदी जाने वाली गाड़ी पंजाब में ही रजिस्टर्ड होगी। तमाम मैन्युफैक्चरर्स, मोटर ब्रांचेस पंजाब में फरोख्त होने वाली गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के पाबंद होंगे। मैन्युफैक्चरर्स डीलर्स की मोटर ब्रांचेस को फहरिस्तें फराहम करेंगे। तमाम डीलर्स को बर वक्त डीलर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन के तहत लाइसेंस का इजरा किया जाएगा। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना है कि पंजाब के शनाख्ती कार्ड पर खरीदी जाने वाली गाड़ी मुतल्लिका डीलर रजिस्टर्ड करके मालिक को फराहम करेगा। डीलर्स की फहरिस्तें मौसूल होते ही DVRS के लाइसेंस का इजरा शुरू किया जाएगा। DG एक्साइज के मुताबिक अब तक लाहौर समेत पंजाब भर में 102 डीलर्स के पास DVR लाइसेंस मौजूद हैं। डीलर्स कार रजिस्ट्रेशन पर 2000 सर्विस चार्जेस मौसूल कर रहे हैं। सिस्टम को मजीद शफाफ बनाने के लिए सर्विस चार्जेस में मामूली इजाफा किया जाएगा। छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी टैक्स की मुतारिफ सालाना 20 करोड़ तक कारोबार करने वाले फ़ायदा उठाएंगे। दुकानदार कारोबार पर सिर्फ 1% इनकम टैक्स अदा करेंगे। स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए कम अज़ कम 25,000 रुपये टैक्स जमा कराना लाजमी होगा। FBR ने छोटे दुकानदारों के लिए खसूसी टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। सालाना 20 करोड़ तक कारोबार करने वाले दुकानदार नई स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। खसूसी स्कीम के तहत दुकानदार कारोबार पर सिर्फ 1% इनकम टैक्स अदा करेंगे। दुकानदार को IRS पोर्टल, मोबाइल ऐप, टैक्स दफातर से रजिस्ट्रेशन कराना होगी। स्कीम से फायदा उठाने के लिए कम अज कम 25,000 रुपए टैक्स जमा कराना लाजमी होगा। खसूसी स्कीम वाले दुकानदारों को मामूल के टैक्स ऑडिट से इस्तिस्ना दिया जाएगा। सिर्फ टैक्स चोरी या गैर मामूली माली लेन देन की सूरत में कार
भरपाई की जा सकेगी। दुकानदार आसान इनकम टैक्स रिटर्न उर्दू और इलाकाई जबान में भी जमा करा सकेंगे। दुकानदारों को सेक्शन 153 के तहत विद होल्डिंग टैक्स कटिंग की जरूरत नहीं होगी। दुकानदारों की सेल्स टैक्स, POS सिस्टम और डिजिटल इन्वेस्टिंग से भी इस्तिस्ना मिलेगा। FPR हुकाम के मुताबिक अहल दुकानदारों को FPR की ग्रीन प्लेट जारी की जाएगी। ग्रीन प्लेट पर QR कोड, NTN और दुकान की तफसीलात दर्ज होंगी। ग्रीन प्लेट में रजिस्टर्ड दुकानों में FPR अफसर बिला वजह दाखिल नहीं हो सकेंगे। 20 करोड़ से ज्यादा कारोबार, एक से ज्यादा दुकानों के मालिकान स्कीम में शामिल नहीं होंगे। लेस्को ने बिजली चोरों की रोकथाम के लिए लाइन लॉसेस वाले ट्रांसफार्मर्स पर स्कैनिंग मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी। स्कैनिंग मीटर्स की मदद से इलाकाई सतह पर बिजली चोरों को पकड़ने में आसानी होगी। लेस्को ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए हाई लाइन लॉसेस वाले ट्रांसफार्मर्स पर स्कैनिंग मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी। स्कैनिंग मीटर्स की मदद से इलाकाई सतह पर बिजली चोरों को पकड़ने में आसानी होगी। कंपनी ने हाई लाइन लॉसेस वाले इलाकों में स्कैनिंग मीटर्स लगाने के अहदाफ मुकर्रर कर दिए हैं। लेस्को ने रवा माह के दौरान तमाम मुतलका दफातर को स्कैनिंग मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करने की हदायत की है। शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हाई लाइन लॉसेस की बुनियाद पर स्कैनिंग मीटर्स नस्ब कर दिए गए हैं। कंपनी ने बिजली चोरी वाले इलाकों की निशानदही करके स्कैनिंग मीटर्स लगाने का आगाज किया है, जिसकी मदद से बिजली चोरों की शरह को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। जराये ने बताया कि ट्रांसफार्मर्स पर नस्ब तमाम कनेक्शंस के यूनिट्स का स्कैनिंग मीटर्स की रीडिंग से मवाजना किया जाएगा, जिसके दौरान स्कैनिंग मीटर्स की रीडिंग ज्यादा होने की सूरत में चोरी को पकड़ा जा सकेगा। स्कैनिंग मीटर्स की रीडिंग के बाद ट्रांसफार्मर्स पर नस्ब तमाम कनेक्शंस की मुसलसल निगरानी की जाएगी। स्ट्रीट क्राइम नज़रअंदाज सिक्योरिटी ड्यूटी तरजीह बन गई। 2 अरब 41 करोड़ के फंड्स लेने वाली डॉल्फिन फोर्स मंजिल से हट गई। 600 मोटरसाइकिलें अपनी मुद्दत मियाद पूरी कर गईं। अरबों के बजट के बावजूद नई मोटरसाइकिलों और वसाइल की फराहमी ताहाल ना हो सकी। फील्ड असदाद दबाव का शिकार। स्ट्रीट क्राइम नजरअंदाज सिक्योरिटी ड्यूटी तरजीह बन गई। 2 अरब 41 करोड़ के फंड्स लेने वाली डॉल्फिन फोर्स मंजिल से हट गई। अरबों रुपए का बजट लेने वाली डॉल्फिन फोर्स सिक्योरिटी ड्यूटी तक महदूद होकर रह गई। 2 अरब 41 करोड़ 81 लाख के बजट के बावजूद डॉल्फिन फोर्स सिक्योरिटी फराइज में मसरूफ है। 2.41 अरब के फंड्स हासिल करने वाली फोर्स की 600 मोटरसाइकिलें अपनी मुद्दत मियाद पूरी कर गयी। डॉल्फिन फोर्स का ऑपरेशन फ्लीट पुराना होने के बावजूद अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी में मसरूफ रहे। 3,451 आसामियों और अरबों रुपए के बजट के बावजूद डॉल्फिन फोर्स की फील्ड इस्तेदाद दबाव का शिकार है। 62 करोड़ 63 लाख बुनियादी तनख्वाहों और मराद के लिए मुख्तस मगर ऑपरेशनल वसाइल की तजदीद न हो सकी। अरबों रुपए के बजट के बावजूद डॉल्फिन फोर्स को नई मोटरसाइकिलों और वसाइल की फराहमी ताहाल न हो सकी। डॉल्फिन फोर्स की अदम दस्याबी के बायस जिला पुलिस ने शहर में नाकों का सिलसिला शुरू कर दिया। और यहाँ आपको बताएं कि कैदी रवां साल 1 अरब की चाय पिएंगे। खुराक के बजट में 20% चाय पर खर्च होंगे। लाहौर के कैदियों की चाय पर 29 करोड़ खर्च आएगा। जेलों में 70,000 से जायद कैदियों के खाने पीने पर 5 अरब अखराजात होंगे। खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। रवा माली साल में कैदी 1 अरब की चाय पिएंगे। सूबा भर की जेलों में 70,000 से जायद कैदियों के खाने पीने पर 5 अरब से जायद के अखराजात होंगे। अदादोशुमार के मुताबिक खुराक के बजट में 20% के करीब चाय पर खर्च होंगे। अदादोशुमार के मुताबिक चाय के लिए लाहौर के कैदियों के लिए 29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तमाम जेलों के लिए 80 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च होंगे। लाहौर में चाय की पत्ती के लिए 3 करोड़, तमाम जेलों में 11 करोड़ से खरीदी जाएगी। चाय में इस्तेमाल होने वाली चीनी 9 करोड़ 67 लाख रुपए में खरीदी जाएगी। खाने और चाय बनाने के लिए 67 करोड़ रुपए से जायद की लकड़ी खरीदी जाएगी। रवा माली साल में अशिया की खरीदारी के लिए टेंडर्स जारी कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक रवा माह टेंडर मुकम्मल करके कम रेट्स देने वाले ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया जाएगा। मामून खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट सलमा भट्ट कहती हैं, गैर मयारी खुराक की वजह से अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। खुराक ठीक होगी तो अस्पतालों में मरीज कम होंगे। फूड इंडस्ट्री पर इस सूरत हाल की जिम्मेदारी आयद होती है। सलमा भट्ट ने लाहौर चैम्बर का दौरा भी किया। मावन खसूसी बराए प्राइस एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट सलमा भट्ट ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया और सदर फहीमुर रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुर्रम लोधी से मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स यूनिटी आमिर रफीक कुरैशी, सदर मुल्तान रोड इंडस्ट्री एसोसिएशन अरशद चौधरी, आबिद मीर, आसिफ खान, सद्दाम अतर खान, चौधरी मोहसिन बशीर, रियाजुल हसन, राना शाबान अख्तर और दीगर शरीक हुए। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल ने कहा कि लाहौर चैम्बर के तमाम मेंबर्स टैक्स पेयर हैं। फूड और दीगर इंडस्ट्री हुकूमती SROs की पैरवी करते हैं। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि डिसिप्लिन सख्ती के बगैर कायम नहीं हो सकता। हमारे फूड के सेक्टर के लोग हैं, रेस्टोरेंट हैं, जितनी भी आपके जो आपका सब्जेक्ट है उसके यानी रेलेवेंट बिजनेस कमेटी है वो हमारे मेंबर्स हैं। हम भी
उन लोगों को मैडम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 टैक्स पेयर हैं, नंबर 2 जो भी SOPs होते हैं, जो भी डिसिप्लिन कायम करने के लिए मैकेनिज़्म गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है, उसको जो फॉलो करता है हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करता है हम उसको कभी एडवोकेट नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि मेरा मानना भी है कि जो डिसिप्लिन है वो सख्ती के बगैर कायम ही है। मावन खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा कि कारोबार करें मगर लोगों की जिंदगियों के साथ ना खेलें। ऑयल इस्तेमाल की एक हद है, एक हद के बाद वो कैंसर का बायस बनता है। सलमा भट्ट ने कहा कि गैर मयारी खुराक की वजह से अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। खुराक ठीक होगी तो अस्पताल में मरीज कम होंगे। फूड इंडस्ट्री पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। आप अस्पताल देखें, आप प्राइवेट अस्पताल जाएं, आप सरकारी अस्पताल जाएं, 400 बिस्तर होगा, 1100 मरीज होगा ऊपर लेटने वाला। एक बिस्तर के ऊपर 6-6, 8-8 मरीज आते हैं फी बिस्तर। आप यहाँ से देख लें कि आज हमारे पास हाइपर टेंशन और डायबिटीज़ की पेशेंट किस उम्र से शुरू हो जाते हैं, 20s में। ये जो हेल्थ जो बर्डन है इसकी रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा हमारी फूड इंडस्ट्री है। मावन खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा कि रेस्टोरेंट्स के लिए स्टार रेटिंग का निजाम ला रहे हैं जिसे जल्द नाफिज कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मेडिको लीगल केसेस की रिपोर्टिंग से मुतालिक इजलास वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद, स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस नबीला इरफान, MS साहिबान की शिरकत। सलमान रफीक ने कहा टीचिंग अस्पतालों में मेडिको लीगल जारी करवाने के ऑनलाइन किया जाए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मेडिको लीगल केसेस की रिपोर्टिंग ऑनलाइन ना होने का संगीन मामला। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मेडिको लीगल केसेस की रिपोर्टिंग के हवाले से वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद, स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस नबीला इरफान, MS मियो अस्पताल डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रेहान, MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन, MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर राना खुरम, MS जिना अस्पताल डॉक्टर हाफिज मोइन और MS मियां मुंशी अस्पताल डॉक्टर मामून अकबर कुरैशी समेत अफसर शरीक हुए। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि टीचिंग अस्पतालों में मेडिको लीगल जारी करने के अमल को ऑनलाइन किया जाए। ख्वाजा सलमान रफीक ने जोर दिया कि MS हजरात इस हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना से मुलाकात, मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। हेड कांस्टेबल मोहम्मद जबान की सरकारी रिहाइश की दरख्वास्त पर AIG डेवलपमेंट को गौर करने की हिदायत की। अमार यासिर की माली इमदाद की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को हिदायत दी। इंस्पेक्टर मोहम्मद काशिफ के ट्रांसफ़र की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ फराहम करने की हिदायत की। IG पंजाब ने ड्राइवर कांस्टेबल तारिक महमूद की तिब्बी माली इमदाद की दरख्वास्त पर एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत की। चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफीला गोंदल की ज़ेर सदारत रिंग रोड पुलिस का माहाना जायजा इजलास, हादसात में नुमाया कमी और पैदल क्रॉसिंग कंट्रोल पर रिंग रोड पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। कमांडेंट मियां एजाज रशीद और तमाम सर्कुलर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। चेयरपर्सन को बताया गया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान लाहौर रिंग रोड पर एक भी हादसा पेश नहीं आया। चेयरपर्सन ने ओवर स्पीडिंग, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग और गफलत के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करने की हिदायत की। सफीला गोंदल ने एक्सेल लोड मैनेजमेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत की। चेयरपर्सन ने लाहौर रिंग रोड को मजीद महफूज बनाने के लिए मौसर इन्फोर्समेंट जारी रखने का भी हुक्म दिया। पियाफ मियां अंजुम निसार ग्रुप की एग्जीक्यूटिव बॉडी का फ्लैटिस होटल में इजलास। पैटर्न इन चीफ पियाफ मियां अंजुम निसार ने पाइनियर्स बिजनेस ग्रुप के साथ इंतखाबी अलायंस तोड़ने का ऐलान कर दिया। पियाफ मियां अंजुम निसार ग्रुप की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पैटर्न इन चीफ पियाफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन पियाफ और सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सैगल ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, सीनियर वाइस चेयरमैन पियाफ नसरुल्लाह मुगल, वाइस चेयरमैन ताहिर मंजूर चौधरी शरीक हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाऊ मोहम्मद बशीर, खालिद परवेज, अदनान भट्ट, ख्वाजा शाजिब अकरम, जीशान सोहेल, नदीम कुरैशी भी मौजूद थे। बाबर महमूद, नईम हनीफ, अब्दुल मनान शेख, अदनान भट्ट, राना निसार, जफर महमूद चौधरी और मुदस्सर मसूद भी शरीक हुए। मियां अंजुम निसार ने कहा, पियाफ मियां अंजुम निसार ग्रुप का अब पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के साथ अलायंस नहीं रहा। फाइनली ये जो हमारा एजेंडा था कि क्या हम पायनियर बिजनेस ग्रुप के साथ एज अलायंस पार्टनर जिनके साथ
पिछले इलेक्शन हमने कंटेस्ट किया था, क्या हम उनके साथ चल सकते हैं? तो पूरे हाउस ने इस बात की तायद की कि फर्दर पायनियर बिजनेस ग्रुप के साथ चलना हमारे लिए मुश्किल है। इदारे की बेहतरी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए मजबूरन ये फ़ैसला करना पड़ा है और आज मैं ऐलान कर रहा हूँ कि पायनियर बिजनेस ग्रुप के साथ जो इलेक्शन के जो मामलात हैं, हम मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते। पैटर्न चीफ पियाफ मियां अंजुम निसार ने कहा कि नए और पुराने इत्तेहादियों के लिए पियाफ मियां अंजुम निसार ग्रुप के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। पियाफ मियां शफकत ग्रुप के साथ मशरूत इत्तेहाद का इशारा भी दे दिया। पियाफ मियां शफकत ग्रुप के साथ मुमकिना तौर पर मशरूत इत्तेहाद का इशारा भी दिया। बहुत सारी बातें हो रही हैं, अब देखते हैं कि किन से बात आपकी जो है वो मिच्योर होती है। अब देखते हैं जिनके साथ हमें सूट कर जाएगा, उन्हें सूट करेगा, हमें सूट करेगा, फिर देखते हैं आगे मामला क्या चलते हैं। हमने तो दरवाजे सबके लिए, दोस्तों के लिए खोले हैं और आप देखें कि उसमें नए भी आ सकते हैं, पुराने भी आ सकते हैं, सारे मामला हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पियाफ के तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान बड़ी तादाद में शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर चैम्बर की सियासत में बड़ी हलचल। पियाफ की जानिब से अलायंस तोड़ने पर चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हस्साम का रद्द-ए-अमल। चेयरमैन PBG अली हस्साम अस्कर ने कहा कि मुझे मीडिया के जरिए पता चला कि मियां अंजुम निसार ने अलायंस तोड़ दिया, वक्त बताएगा किसने धोखा दिया। अली हस्साम अस्कर ने कहा कि अगले 48 घंटे में पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप भरपूर जवाब देंगे। जो हमारा पियाफ का और PBG का मायदा था, वो शायद जो हमारा एग्रीमेंट था, वो अंजुम निसार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने हमारे साथ अलायंस को ब्रेक कर दिया। ये एक लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी अभी आगे जाके खुद देखेगी कि ये कितना बड़ा धोखा है। अंजुम साहब, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता रहूंगा, लेकिन जब पूरे लाहौर ने आपको छोड़ा, अली हुसाम आपके साथ खड़ा हुआ, पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप आपके साथ खड़ा हुआ, और ये जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, आई थिंक आपको शायद कोई यूथ के साथ, प्रोबेबली मुझे लगा है कि कोई थोड़ी सी आपको कोई एलर्जी है यूथ के साथ। इंशाल्लाह ताला अगले 48 घंटे के अंदर पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अपना भरपूर इस चीज के ऊपर जवाब देगी और इंशाल्लाह ताला हम लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को अपना पूरा मुकदमा पेश करेंगे। हम इधर आए हैं सिर्फ और सिर्फ खिदमत के लिए और आप हमें खिदमत से रोकना चाह रहे हैं। और बहुत अफसोस हुआ कि हर बंदा कहता था कि अंजुम निसार साहब अपनी जबान पे खड़े होते हैं और आपने बगैर मुझे मिले, बगैर मुझे कंसल्ट किए आपने ये एग्रीमेंट तोड़ा है। अल्लाह ताला खैर करे जी, इंशाल्लाह ताला। आई एम विशिंग यू ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग इलेक्शंस। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप with all its strength, with all its brothers, inshallah ta'ala, and all the voters of Lahore and all the business community of Lahore will face you in the coming elections of Lahore Chamber of Commerce and Industry. रेलवेज पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वाल्टन में 69वें रिक्रूट कोर्स और दूसरे सब इंस्पेक्टर कोर्स की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। तकरीब में वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तरबियत मुकम्मल करने वाले अफसरों और नौजवानों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा गया। पाकिस्तान रेलवेज पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के सीनियर अफसरों समेत पास आउट होने वाले अफसरों और नौजवानों के अहल खाना ने शिरकत की। पास आउट होने वालों में मजमूई तौर पर 875 अफसर और जवान शामिल थे, जिनमें 87 खवातीन भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने परेड का मुआयना किया और मुख्तलिफ अमली मुजाहरों का मुशाहिदा किया। पास आउट होने वाले पुलिस के नौजवानों का कहना है कि वतन की खिदमत पूरी लगन, दयानतदारी और पेशावराना महारत से अंजाम देंगे। मीडिया और यूनियंस में सिनफी मसावात के फ़रोग के लिए कौमी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मिलकर आगे बढ़ने के उन्वान से 2 रोज़ा तरबेती कॉन्फ्रेंस का अहतमाम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट और वुमेन मीडिया फोरम पाकिस्तान ने फेडरिक एल्बर्ट फाउंडेशन के इश्तराक से किया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से ख़वातीन सहाफ़ियों, यूनियन रहनुमाओं ने शिरकत की। इसका मकसद न्यूज़ रूम्स में सिनफी तासुब के खात्मे, महफूज काम के माहौल और यूनियंस में ख़वातीन की क़यादत बढ़ाने के अमली हिकमत अमली तरतीब देना था। केस स्टडीज़ और पैनल डिस्कशंस में सहाफ़ियों ने न्यूज़ रूम में दरपेश मसाइल और उनके हल पर तफसीली गुफ्तगू की। मुकर्रीन का कहना था कि न्यूज़ रूम्स में ऐसी पॉलिसियाँ बनाना होंगी जो ख़वातीन के लिए महफूज और मसावी
مواقع فراہم کریں۔ مقررین نے یونینز اور پریس کلبز کے مطالبہ کیا کہ وہ خواتین کو فیصلہ سازی میں حقیقی شمولیت دیں۔ راؤنڈ ٹیبل 2 کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کا عنوان عالمی تجارت کے لیے خواتین کاروباریوں کو بااختیار بنانا تھا۔ کانفرنس کا انعقاد FWCCI اور ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اینڈ ڈسپلے سینٹر کے اشتراک سے کیا گیا، جس میں نائب صدر FPCCI قرۃ العین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر صدر FWCCI شاہدہ آفتاب، صدر لاہور ویمن چیمبر فلاحت عمران اور نائب صدر FWCC میمونہ عمران بھی موجود تھیں۔ شرکاء نے خواتین کی فلاح و بہبود، کاروبار کے فروغ اور عالمی تجارت میں خواتین کے کردار پر تفصیلی گفتگو کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔